Good evening, all of you. And here is a booster session for calculus. And the previous session was effective, so let's continue that. So the first question is, let's say if you have a function f of x equals x square minus 4 to the power 8 minus 128 root over 4 minus x square. We need to find the range of this function. Range means the minimum and maximum value. Now clearly it's not very difficult because from the domain we can see 4 minus x square should be greater than or equal to 0, which gives x belonging to minus 2 to 2. Right? And that tempts me to define a function. Let's say this, if I call as u, so x square minus 4 will be nothing but minus u square. So my function becomes minus u square to the power 8 minus 128 u. Under the restrictions, like u is root over 4 minus x square. Now we know since x is minus 2 to 2, so roughly if we'll try to plot the graph, at 2 it will die, minus 2 it will die because of even nature, at 0 will have 2. So u itself lies from 0 to 2. Right, so under this restriction of u, we have to find minimum and maximum value of this function. So let's call this function as f. So we have u 16 minus 128u. And u belongs to 0 to 2. Now we will find the derivative of f dash, that will give 16u 15 minus 128. तो क्रिटिकल पॉइंट अगर आप इसका निकालिएगा तो u 15 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, इम्प्लाइज u इज 8 का पावर 1/15 विच इज 2 का पावर 1/5. g0 का जो वैल्यू आ रहा है अपने पास वो 0 आ रहा है. g of 2 at the extreme point we are getting 2 का पावर 16 minus 128 into 2, which is roughly 2 का power 8 into 2 का power 8 minus 1. Okay, because to find the maximum minimum, we'll try to investigate this function on critical point as well as on the extreme point. ठीक, तो g of critical point by 2 का power 1/5 अगर आप प्लग करोगे तो this is coming as minus 120 into 2 का power 1/5. That you can just put in check. यहाँ से आ गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन f इक्वल्स 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 8 minus 1 and minimum value of function is minus 120 into 2 का power 1/5. So this was an easy question, but similar problems was already asked in advance, so I thought of taking this. Okay, so what they'll do is basically they'll give you some functions here and over here. Using domain restriction, you can simplify the functions and first find the range of the function f of x, right? And then maybe they'll ask you f of x cube plus maybe f of x square plus or sine f of x, and f of x itself will be given is like, let's say, x square minus x plus 2. So first we'll find the range of this. Maybe in the given restriction, let's say x belongs to 1 to 2. अब उस रेंज से now you take f of x as t, so we'll get t cube plus t square plus sine t. अब फिर इसको एक नया फंक्शन साई लेके फिर डिफरेंशिएट करके उसका नेचर यू कैन इन्वेस्टिगेट. ठीक है, तो दिस वाज फर्स्ट प्रॉब्लम. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, और ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से लेते हैं. देखने में सिंपल ही है बट आपको कैलकुलेशन भी सही से करना आना चाहिए. लॉग √3 minus 1/2 to 0, we have 1 by e to the power x plus 1 plus e का power minus 60x. Now you can clearly see e to the power x demands e ka power x, so that motivates me to multiply with e ka power x on both sides, whole x square. This will be e to the power x and this is 1. Now we put e ka power x as t, and that gives me, if x is ln of this, so that goes to √3 minus 1/2 to 1 by u square or t square plus t plus 1 dt. Now you can make this perfect square, is t plus half whole square, ये जो टर्म है, प्लस 3/4. तो यहाँ से क्या आ गया, 4/3 टाइम्स dt over 4/3 u प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 1. अब इसको भी थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हो. सो वी गॉट 4/3 टाइम्स √3 minus 1/2 dt बाई 2u plus 1/√3, इसको अंदर ले लिया, प्लस 1. ओके, एंड नाउ इट्स 4/3 1 to √3, because if I take √2 to 1 plus b by √3 as some b, so we'll get 1 to √3
√3/2 dv/b²+1. तो ये gives you √10 inverse b evaluated from 1 to √3, and that's 2/√3, 10 inverse √3 pi/3, 1 is pi/4. तो आंसर जो आपका बन के आ रहा है वो π√3/18. ठीक है, तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस भी एडवांस में आते हैं, ऐसा नहीं है जो एवरी क्वेश्चन विल बी टेक्निकल ओनली, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशंस दे वांट टू चेक. सो दिस वाज वन ऑफ देम. ओके, सो अकॉर्डिंगली आई हैव टेकन प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट काइंड. चलो, अगर क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं. सपोज लेट्स से थर्ड क्वेश्चन. Suppose f is a function operating from real to real, be a differentiable function, such that f of 0 is given, let's say 2024, and f of 2024 is given to be 0, right? So now in the option wise they'll give you 4 options, but I'm just asking you to prove, like, can you show that there exists some a to b, this is a symbol for there exists some a to b belongings to real number, such that a is not equal to b and f dash a into f dash b must be 1. इसका मतलब फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ये बोल रहा है एक फंक्शन है जो कि स्मूथ है, मतलब डिफरेंशिएबल है हर जगह, टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, और फिर कंटिन्यूस ऑफ कोर्स होगा क्योंकि डिफरेंशिएबल है. 0 से 2024 के इंटरवल में, सच दैट 0 पे जो आउटपुट है वो 2024 है, 2024 पे 0 है. तो फंक्शन बहुत टाइप का हो सकता है, मान लो ऐसा. ठीक है, एक एग्जाम्पल. तो ये टू प्रूव लाइक एक ऐसा दो वैल्यूज हमको मिलेगा ए एंड बी, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज 1. तो सपोज एक यहाँ पे मैंने स्लोप दिया, लेट्स से ये स्लोप का वैल्यू कुछ थीटा करस्पॉन्डिंग में दिस -2 हो गया. ठीक है, सो विल ऑल्सो हैव अ स्लोप जिसका वैल्यू, ठीक है ना, मतलब लेट्स से some slope और मुझे मिलेगा, such that if this slope is what we call red slope is -2, so you can always find another slope which is, let's say, like -half, such that the product of them is equal to 1. और सपोज एक ऐसा फंक्शंस बनने को मिल रहा है अपने पास. तो मान लो फंक्शन अगर ऐसा आ रहा है, ठीक है, सपोज क्योंकि फंक्शन का मीन एनीवे, तो अगर यहाँ पे कुछ स्लोप आ रहा है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे स्लोप आ गया मेरा -3. सो इट्स आस्किंग यू टू प्रूव लाइक एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ पे स्लोप जो होगा वो एंगल जो हो जाएगा -1/3, सो दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई यू गेट 3. ओके, सो नाउ हाउ टू गो अबाउट दिस. अब ऐसा गारंटी तो जस्ट बाय लुकिंग यू कांट टेल. तो यहाँ पे अगेन लाइक सिंस द आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम 2024 एंड 0. तो आप देख रहे हो 2024 और 0 का जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट है, 2024 और 0 का. ओके, सो दैट मोटिवेट्स मी टू डिफाइन अ फंक्शन f of x माइनस एक्स. मान लो अगर मैं ये फंक्शन को कुछ g of x डिफाइन करूँ, ठीक है, तब यहाँ से क्या होगा ना, g of 0 तुमको पता है f of 0 -0 हो जाएगा, जो 2024 इज 2024 माइनस 2024 हो जाएगा. So intermediate mean value theorem से I know like there exists some c. So if g of x is f of I minus f minus x, then between 0 to 2024 I can give guarantee there exists some c such that g of c will die. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि what is g of 0? f of 0, right? And f of 0 is positive. And what's g of 2024? That is f of 2024 minus 2024. तो f of 2024 is 0, ये नेगेटिव हो गया. Since f of x itself is a continuous function because it's differentiable, so g भी continuous और differentiable होगा. ठीक है, तो यहाँ से 1c इज गारंटीड, जहाँ पे फंक्शन g ऑफ c जो होगा वो 0 होगा. इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1c बिटवीन 0 to 2024 वेयर f of c इज गोइंग टू बी c. अब ये इंटरेस्टिंग है. अब वो ऑब्वियस था फंक्शन को देखने से भी, क्योंकि देखो तुम कैसा भी ग्राफ सोचो एंड दिस इज y इक्वल टू x लाइन, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फंक्शन तो y इक्वल टू x को कट करना ही होगा. ये बचेगा कैसे? बिकॉज इफ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अप एंड डाउन एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यू कांट मूव आउट अंटिल यू आर ए शक्तिमान. शक्तिमान मीन्स डिसकंटिन्यूअस. सपोज ग्राफ ये इधर गया और सडनली नीचे गिर गया, बट दैट्स नॉट द सिचुएशन ऑफ. ठीक है, तो ये जो कंक्लूजन था एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स वाला, दैट्स कॉमन सेंस फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो. बट एनीवे लेट्स सी मैथमेटिकली. अब हम अब ना व्हाट थॉट प्रोसेस विल बी देयर, क्योंकि देखिए आपको कहीं ना कहीं आपको एफ डैश ए लाना था पिक्चर में. ठीक है,
तो एफ डैश ए लाने के लिए वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस समथिंग व्हाट एवर इट इज, ठीक है। अब देखो अब जीरो सी में मीन्स नाउ वी हैव इंटरवल जीरो एंड सम सी मे नॉट बी इन मिडिल एनीवेयर, सो नाउ आई विल पिक अप टू इंटरवल, एक ये वाला और एक ये वाला। अब जीरो से सी में इफ आई अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम, सो देयर एग्जिस्ट सम ए हियर such that f dash a is going to be fc minus f0 by c minus 0 from Lagrange's mean value theorem for at least some c, at least one c belonging to 0 to at least one a, sorry there exists some a, at least one a belonging to 0 to c। अब फिर से C2 2024 में देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बी सच दैट एफ डैश बी विल बी एफ 2024 माइनस एफ ऑफ सी बाई 2024 माइनस सी। तो यहाँ से एफ ऑफ 2024 इज जीरो, और तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ सी इज ऑलरेडी सी, यहाँ से हम देखें ना, मतलब कोई एक ऐसा सी है जहाँ पे एफ ऑफ सी हो जाए, दिस इज माइनस सी बाई 2024 माइनस सी। और ये क्या हो गया, ये जो बन गया एफ ऑफ सी माइनस एफ जीरो इज 2024 बाई सी। तो अब देखो क्वेश्चन हो गया ओवर, कैसे हो गया ओवर, क्योंकि ये आ गया अपने पास सी बाई सी माइनस 2024 एंड एफ डैश इज सी माइनस 2024 बाई सी। So definitely existence of A and B such that the product of their slope is 1 is guaranteed. Get this into this adjust, ठीक है। The point is not just to enjoy the solution, point is how thought process is coming। तो देखो point was इस दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, साथ एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स के प्रोडक्ट को वन लेना है। एंड वी आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ सिलेबस, क्योंकि अपने सिलेबस में सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम है, तो तुम ऐसा सोचो एक बार में दोनों डेरिवेटिव तो आएगा नहीं, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व किए हो, सपोज एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर रहता एंड देन इफ आई टेक द डेरिवेटिव, तो ये 2f f डैश प्रोड्यूस करता। सो इफ क्वेश्चन वुड हैव बीन f f डैश, आई विल थिंक ऑफ यू नो लाइक क्रिएटिंग अ फंक्शन साई एज f ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 1 और माइनस एक्स वाट एवर। अगर फंक्शन f डैश f डबल डैश होता तो फिर हम f डैश स्क्वायर के बारे में सोच सकते थे, क्योंकि इस डेरिवेटिव विल बी देयर, ठीक है। तो f डैश x और f डैश b में ये क्लियरली दिख रहा था, आपको एक मीन वैल्यू थ्योरम लगाना होगा विच विल गिव बर्थ टू एफ डैश ए। अब एफ डैश ए के लिए वी हैव टू यूज एफ ऑफ समथिंग माइनस एफ ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग माइनस समथिंग, राइट, एज एफ डैश ए। सिमिलरली यू हैव टू डू द सेम थिंग फॉर एफ डैश बी, बट यू हैव टू select these functions in such a fashion like this numerator such that their product is 1 at the same time using this information। तो एक ये थॉट प्रोसेस, ठीक है। वैसे आप इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या कर सकते हो ना, तुम स्कैम भी कर सकते हो। देखो स्कैम अगर दिमाग नहीं लगाना है तो हाउ वी कैन डू स्कैम। अब जीरो पे 2024 है और 2024 पे जीरो है, तो सबसे सिंपलेस्ट कर्व क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो इमेजिन स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन पर क्लियरली इसका स्लोप कितना हो गया, ये -1 हो गया ना, तो क्लियरली 2 पॉइंट ऐसा तुमको दिख ही रहा है डिस्टिंक्ट हुज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज़ 1, तो वो तो डेफिनेटली ये ऑप्शंस अगर मल्टीपल करेक्ट में है तो सही होगा। सो द प्रॉब्लम इज स्कैमेबल, इट्स फाइन। अदरवाइज अगर आप फंक्शन के बारे में नहीं सोच पा रहे हो तो फिर आप मीन वैल्यू थ्योरम लगा के भी उसको हैंडल कर सकते हो। आई होप द आइडिया इज ओके, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग वन। तो यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट f be a continuous function in 0 to 1, okay, so I'm not writing the entire statement। अगर f is a continuous function in 0 to 1 such that integral of 0 to 1 ft dt is 0, then which of the following option is correct। let's say one option is 0 to 1 e का power 2024 ft dt, it is e to the power 2024 ft means it's there, and dt is more than equal to 1। option B same, 0 to 1 e to the power 2024 ft dt is less than equal to half। option C is 0 to 1 e का power 24 ft dt is equal to 0, and option D 0 to 1 e to the power 2024 ft dt
लेस देन इक्वल टू 1/24। तो इसमें से विच ऑफ द आंसर विल बी करेक्ट। मान लो ये सिंगल चॉइस में आ गया। अब क्लियरली पहला चीज़ तो जैसे ही 2024 दिया, सो दिस इन्फॉर्मेशन इज इरिलेवेंट। इट मीन्स दे मस्ट हैव थॉट ऑफ ए जनरल क्वेश्चन 0 to 1 e टू द पावर सम a टाइम्स ft dt, और फिर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये तो आइडिया अपने आप सोच सकते हो। इट मीन्स इंस्टेड ऑफ 2024 यू कुड किल इट विथ 1 और 2, जैसा आपका फील आए। ठीक है, अब वन वे इज अगेन आप स्कैम करके एक फंक्शन ही ऐसा सोच लो जो 0 से 1 में डाई कर रहा है इंटीग्रल। इट मीन्स एट 0 यू टेक सम वैल्यू, एट 1 यू टेक एग्जैक्टली नेगेटिव वैल्यू। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन सोच लो सो दैट दिस एरिया गेट्स किल्ड। अब वो वंस यू नो द फंक्शन, फंक्शन को इसमें डाल दो और फिर तुम इंटीग्रेट करके और एस्टिमेट करके आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। ठीक है, इवन दीज मेथड्स ऑल्सो वर्क्स। ऐसा नहीं जो एडवांस व्हेन दे आर गिविंग क्वेश्चन दीज वीकनेस आर रनिंग इन देयर माइंड। मोस्ट ऑफ द टाइम इट रन्स, लेकिन कभी कभी आप स्कैम कर सकते हो। दिस इज लॉजिकल स्कैम, इट्स नॉट लाइक ब्लाइंड सम फुलिश तुक्का स्ट्रेटजी। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू प्रूव दिस। सो व्हाट आई विल डू इज, मुझे चेक करना है वेदर 1 के से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा। नाउ अगेन ऑप्शंस आप देख सकते हो, दिस इज मोर देन 1 एंड दीज ऑप्शंस आर लेस देन 1। ठीक है, फर्स्ट ऑफ फील यू आर गेटिंग एफ टी, वाट एवर एफ टी इज, इफ इट इज कंटिन्यूअस तो सम पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया मिलके इसको 0 हो जाना है 0 से 1 में। ठीक है, ग्राफ मेनी टाइम्स ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन फाइनली 0 से 1 में इसको मरना है। तो कुछ तो फील आ रहा है, लाइक मीन्स एटलीस्ट 1 रूट तो इसका होगा ही 0 से 1 में। ओके, ये तो फील आ रहा है। चलो लेट मी एनालाइज दिस फंक्शन। नाउ वी नो फॉर अ पर्टिकुलर एफ टी, बिकॉज लेट्स से इफ एफ टी इज टी, सो ई का पावर टी डी टी व्हेन विल इंटीग्रेट, सो एनी वे विल गेट ई का पावर ए टी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, एंड दैट इवैल्यूएट फ्रॉम 0 to 1, सो विल गेट ई का पावर ए बाई ए माइनस 1 बाई ए, तो ई का पावर ए माइनस 1 बाई। ठीक है ना, ये सही है ना, कैलकुलेशन देखो। हाँ सही। तो अब द पॉइंट इज लाइक नो मैटर व्हाट इज द फंक्शन एफ टी, ये जो इंटीग्रेशन आएगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ ए, राइट। सो लेट्स कॉल इट एट जी ऑफ ए, लेट्स कॉल इट एट जी। अब देखो इफ इट इज जी ऑफ ए तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर, ऑफ कोर्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हियर यू कैन डिफ्रेंशिएट क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो इवन इफ आई विल टेक जी डैश ए, now some of you will tell sir it will be 0, अब क्लियरली 0 नहीं होगा बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ ए। देख रहे हो ना, जैसे 0 से 1 इफ फंक्शन इज टी, तो फिर एक फंक्शन आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू बाई वी रियल से करोगे, तो जी डैश ऑफ ए क्या होगा, इट विल बी डी बाई डी ए ऑफ 0 to 1 ई का पावर ए एफ टी डी टी। नाउ द पॉइंट इज कैन वी टेक दिस डिफरेंशियल इनसाइड द इंटीग्रल। तो वो लिबनीज रूल तो यहाँ डायरेक्ट नहीं लगेगा बिकॉज दीज आर कांस्टेंट। ऐसा नहीं डिफरेंशिएट करके 0 बोल दो, 0 तो होगा नहीं, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, तो हाँ आप यहाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन एफ ऑफ टी कंटिन्यूस है, तो ई का पावर कुछ भी होगा कंटिन्यूस फंक्शन। इफ एफ इट सेल्फ इज कंटिन्यूस देन ई का पावर समथिंग कंटिन्यूस ऑन द हेड विल स्टिल बी मैग्नीफाइड कंटिन्यूस फंक्शन क्योंकि ई विल जस्ट मेक इट मैग्नीफाइड, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। तो विद दिस theorem actually I am allowed to put d by dA inside। ठीक है, तो इसको मैं अंदर कर दिया। अब यहाँ से ये जो वैल्यू आएगा वो 0 to 1 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए। विथ रिस्पेक्ट टू ए मीन्स एफ टी को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करो। सो विल गेट एफ टी ई का पावर ए एफ टी डी टी। सो दिस इज आवर जी डैश डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ। अब सिमिलरली यहाँ से हम डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं क्योंकि फिर से इसे अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो। सो 0 से 1 विल बिकम एफ टी स्क्वायर ई का पावर ए एफ टी डी टी। ठीक है, नाउ वी हैव सम बाउंड्री कंडीशन। व्हाट इज बाउंड्री कंडीशन, इफ जी ऑफ ए 0 to 1 ई का पावर ए एफ टी डी टी। सो व्हाट इज जी ऑफ 0, जी ऑफ 0 इज ई का पावर 0, इट मीन्स विल गेट 0 to 1 ई का पावर 0 डी टी। ई का पावर 0 इज 1, तो ये तो मेरा 1 है। अब जी डैश 0 क्या आएगा, जी डैश 0 क्या आने वाला है, इसमें ए के बदले 0 कर दो, सो इट इज 0 to 1 एफ टी डी टी। अब दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू बी 0, दैट्स वाई आई एम टेम्पटेड टू लाइक कैलकुलेट जी डैश 0। सो जी 0 इज 1 एंड जी डैश 0 इज 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब जी डबल डैश ए का वैल्यू अगेन यू कैन इट इज 0 से 1 एफ टी होल स्क्वायर एंड ई का पावर ए एफ टी डी टी आ गया। अब नो मैटर व्हाट ए यू सेलेक्ट ई टू द पावर समथिंग एनीथिंग इज गोइंग टू बी डेफिनेटली स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा आएगा। ए पॉजिटिव हो नेगेटिव हो 0 हो फर्क नहीं पड़ता है।
और ये समथिंग का स्क्वायर ऑलरेडी नॉन निगेटिव है क्योंकि ये रियल फंक्शन है, तो ये तो ऑलवेज क्या होगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल। ठीक है, तो अब यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, जो जी डबल डैश ए अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, और मेरे पास जी डैश जीरो जो है वो जीरो हो गया और जी ऑफ जीरो वन है, तो व्हाट वी कैन कंक्लूड अबाउट द फंक्शन। ठीक है, हाँ, ये इक्वलिटी ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर नहीं है, अनलेस अब यहाँ पे इक्वलिटी इक्वल टू जीरो हो सकता है। अब ये इक्वल टू जीरो कब होगा, जी डबल डैश ए इक्वल टू जीरो कब होगा, ये पॉजिटिव चीज़ है ऑलवेज, तो ये इक्वल टू जब तब जीरो होगा जब एफ ऑफ टी होल स्क्वायर को ही खुद मरना पड़े, क्योंकि ई का स्क्वायर समथिंग तो मरेगा नहीं, इट मीन्स फंक्शन को आइडेंटिकली जीरो होना पड़े। ठीक है, तो अगर फंक्शन आइडेंटिकली जीरो हो गया मतलब एफ ऑफ टी खुद जीरो हो गया। ठीक है, तो जब एफ ऑफ टी खुद अगर जीरो हो गया तब तो ये ऑब्वियस है, जो क्योंकि वन ऑफ द सॉल्यूशन होगा 0 to 1 में ये फंक्शन ही मर जाए, एफ ऑफ टी जीरो हो जाए। ठीक है, तब तो ऑब्वियस है जो 0 का पावर 1 ई का पावर 0 डी टी जो है वो इक्वलिटी होल्ड कर देगा, डी टी इज इक्वल टू फॉर एफ टी इक्वल टू जीरो। इफ एफ टी इज नॉट जीरो तब फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट द पॉइंट ए इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमम ऑफ जी। समझ रहे हो ना, क्योंकि जी डबल डैश एक्स जी डबल डैश ए इज पॉजिटिव एंड जी डैश जीरो इज जीरो। तो जीरो तो अपना पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया ना, ए इक्वल टू 1 जो आया वो तो पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया। कैसे पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया, ए इक्वल टू 1 पे मैं पूरा ये स्टोरी अगर मैं चला दूं तो आप देख सकते हो, since g of 0 is 1 okay and g double dash a is positive, so g double dash is positive means g double dash 0 भी कोई भी a के लिए पॉजिटिव होगा is also positive, and what about g dash 0, यहाँ से g dash 0 is 0। So with this three information what else we can conclude, with this three information the conclusion will be कि ये तो बहुत ही शानदार कंक्लूजन हो गया। कैसे, क्योंकि अब देखो एक ऐसा फंक्शन है जो 0 पे 1 दे रहा है और इसका 1 पे डेरिवेटिव 0 है और जी डबल डैश 0 जो है वो भी पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन तो इसका मतलब ये ऐसा इंक्रीज करा होगा क्योंकि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा, एंड एट एनी जी डबल डैश एट्स इज पॉजिटिव इट मीन्स द स्लोप विल कीप ऑन इंक्रीजिंग ओके एट 0.1 ऑल्सो 0.02 ऑल्सो। तो ग्राफ का नेचर तो कुछ ऐसा होने वाला है, ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से तो मैं ये गारंटी कंफर्म कर लूँ, जो जी का जो वैल्यू है जी ऑफ एक्स जो होने वाला है वो तो ऑलवेज, और जी ऑफ ए एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड इट। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, जी ऑफ 0 इज 1, जी डबल डैश 0 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स the rate of change of slope is always positive. So initially if slope is 0, just next after slope will be 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते रहेगा। And g dash 0 is 0. So initially at this point horizontal slope is there और यहाँ से slope must increase, तो पक्का ये तो increase ही करते रह जाएगा curve। So whatever answers I am getting at any a will be greater than 1 and equal to 1 will be trivially जब कभी ft itself is 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, the answer for this problem is option A। ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग, क्योंकि 1 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टेक्निक, इसको कैसे करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फर्स्ट आई विल टेल यू अ बेसिक क्वेश्चन फॉर दिस एंड देन विल सी हाउ जेई एडवांस कैन सेट अ क्वेश्चन। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n जो है दैट विल बी लेस देन 1 बाई n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एंड बिलोंग्स टू n। हाउ विल यू प्रूव दिस रिजल्ट। एक तो है जो यू टेक अ फंक्शन साई ऑफ n और बेटर साई ऑफ x ही ले लो,
और फिर उसको डिफाइन करो टेन इनवर्स एक्स प्लस वन माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, और फिर आप इसको प्रूफ कर दो। इसको क्या प्रूफ करोगे? तो ये चीज़ ऑलवेज कोई भी नेचुरल नंबर पे ये पॉजिटिव हो रहा है, मतलब साई ऑफ एक्स जो होगा वो ऑलवेज, साई ऑफ जीरो क्या होने वाला है? टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स जीरो बाई वन बाई जीरो। साई ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइन क्लियरली, ठीक है। तो साई ऑफ वन कुछ वैल्यू आएगा ऐसे ऐसे, तो आप प्रूव कर दो ये ऊपर ही रहेगा फंक्शन। इट मीन्स एट एवरी नेचुरल नंबर विल गेट सम पॉजिटिव हाइट, ठीक है। एक तो ये तरीका होगा मेथड। दूसरा तरीका है टेन इनवर्स n plus 1 how it will take birth. So you know tan inverse is basically the integral of some function, and that's a standard known function. So tan inverse is integral of 1 by 1 plus x square dx. So this is also thought process, ठीक है। तो अब इस थॉट प्रोसेस से बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग ना, इसको डिफरेंशिएट करना पसंद है, क्योंकि डिफरेंशिएशन विल गिव अलजेब्राइक अलजेब्राइक अलजेब्राइक। ओके, सो इफ आई डिफरेंशिएट tan inverse x इट विल बी दिस। तो यहाँ से एक मोटिवेशन आया, व्हाट अबाउट इफ आई tan inverse n plus 1 minus tan inverse n can be written as n to n plus 1 dx by 1 plus x square, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज जो होगा वो बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से। इट मीन्स 1 by 1 plus x square will be lesser than x square. So n to n plus 1 dx by x square, and that gives us minus 1 by x divided from n to n plus 1, and which goes as 1 by n into n plus 1, which way to prove. अब ऑफ कोर्स जेई वाला ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हो सकता है ये इन वन ऑफ द ऑप्शन ये देते, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस अब देखो, क्योंकि ये टेलीस्कोप है, ठीक है। तो लेट्स से इफ आई टेक इन दिस एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ n इज 1, सो आई विल गेट tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 इज 1 by 1 into 2। अब अगर मैं इसको 2 रख लूँ तो tan इनवर्स देखो खुद से 3 माइनस tan इनवर्स 2 इक्वल्स 1 by 2 into 3। अब ऐसे करते करते इफ आई टेक tan इनवर्स 2024 then we'll get tan inverse 2023 1 by 2023 into 2024। now what they'll ask you इसको ऐड करने के लिए, क्योंकि एडिशन से क्या होगा, tan inverse सब गया, and we'll be left with tan inverse 2024 minus tan inverse 1, and that is 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 till 1 by 2023 to 2024. It's not equal, actually it's lesser than, I'm sorry. So there will be inequality, a strict inequality will be there. So if you add this, it will be lesser than this. अब देखो this is very beautiful problem, क्योंकि this becomes a telescopic series. तो ये क्या हो गया, this is, I can write this one as 2 minus 1, this one as 3 minus 2, so it can be written as 1 minus 1 by 2. Next is 1 by 2 minus 1 by 3. ऐसे करते करते 2024 minus 1 by 2023 minus 1 by 2024, and you can clearly see the cancellation. This will, so last of last and first of first will remain. So this will give 1 minus 2024 which is 2023 by 2024, ठीक है। तो यहाँ से जो तुम्हारा एक एस्टिमेशन आया वो बता रहा है, तो tan इनवर्स 2024 जो होगा माइनस tan इनवर्स 1 वो डेफिनेटली छोटा होगा 2023 बाई 2024। ओके, तो ये टेलीस्कोप से वी गॉट दिस। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसको कैन वी गेट इन अदर वे, जैसे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, सिंस बोथ ऑफ देम इज पॉजिटिव, सो tan इनवर्स ओके a माइनस b बाई 1 प्लस a b, एंड a b भी पॉजिटिव है, तो आई कैन अप्लाई। तो इसका तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया tan इनवर्स 2023 बाई 2025, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स x जो है, tan इनवर्स x का जो वैल्यू आएगा, बिकॉज हाउ tan इनवर्स x ग्राफ विल लुक लाइक, so not at infinity it will go to infinity, it's minus infinity, at x tends to 0 the slope is 1, ठीक है, and this is y equal to x line, so clearly you can say x is greater than tan inverse x, ठीक है। इसका मतलब इससे बड़ा हो जाएगा 2023 by 2025। now which is more, 2023 by 2025 or 2023 by 2024? Clearly this is lesser, 2023 by 2024 will be more, right? Because we are increasing 2025 से, if I take a lesser number, so that will grow. It is one of course, ठीक है।
ठीक है, देखो तो इसको तो कोई बच्चा डायरेक्ट ऐसे भी प्रूव कर सकता था सिंपल वे में, तो फिर इसके लिए हम टेलीस्कोप इतना करने का क्या जरूरत था? ऑफ कोर्स यू कैन टेल। द पॉइंट इज लाइक ऑन दिस लाइन ऑफ थॉट कुछ अच्छा क्वेश्चन सेट किया जा सकता है, ठीक है, ऑन दिस लाइन ऑफ थॉट some good question can be set. So that was the point behind giving you this logic. Let's move to the next question, और फिर ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन इसको ट्राई करते हैं। एंड लेट्स से अब कुछ अलग ट्राई करते हैं, ठीक, किस टॉपिक से? ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन जेई टेक्स्ट बुक ऑल्सो। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट इन डिफरेंट फैशन। लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज 1 to x and ln t by 1 plus t dt, okay, and for x greater than 0. तो आपको जो फाइनली फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2024 प्लस एफ ऑफ 1/2024। सपोज तुम्हारा ये क्वेश्चन है, और एक और एफ ऑफ ई प्लस एफ ऑफ 1/, ठीक है। अब देखो द हिंट इज कमिंग फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्योंकि आपको फाइंड करने बोल रहा है एफ ऑफ एक्स plus f of 1/x kind of a structure. Okay, so one of the obvious motivation will be, if I take solution number 1 will be, let's define a function psi x as f of x plus f of 1/x, because this is a structure of what they want. तो अब how to use this information f of x वाला, क्लियरली जब कभी भी वेरिएबल लिमिट है तो क्या ही कर सकते हो, थॉट प्रोसेस शुड बी डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं टू यूज दैट इन्फॉर्मेशन ऑफ लिबनीज रूल। सो psi dash x इज f dash x। अब f ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव इज f डैश ऑफ समथिंग, एंड बाई चेन रूल 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू f डैश x माइनस f डैश 1/x टू 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से f डैश x क्या आ जाएगा? बाई लीबनीज रूल ln x बाई 1 प्लस x, ठीक है। सो नाउ नथिंग ग्रेट, जस्ट आई विल पुट ln x बाई 1 प्लस x, और इसमें f डैश x के बदले तुम कुछ भी ले लो। इफ आई टेक सम रेसिस्टर, आई विल गेट ln ऑफ रेसिस्टर बाय 1 प्लस रेसिस्टर। ओके, डोंट कंफ्यूज हियर, लाइक फिर से हमको डिफरेंशिएट करना होगा क्या इसको चेन रूल से? नहीं, बिकॉज f डैश समथिंग इज दैट्स अ न्यू फंक्शन phi ऑफ x। सो phi ऑफ x इज दिस, व्हाट इज phi ऑफ 1/x, राइट? f डैश 1/x, phi ऑफ 1 ln 1/x बाय 1 प्लस 1/x इंटू 1/x स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हो दिस विल बिकम x प्लस 1, और x ऊपर में x गॉन, ln 1 प्लस एक्स इट सेल्फ माइनस ln x, तो ये प्लस ln x हो जाएगा। तो यहाँ से जो अपने पास आया ln x बाय 1 प्लस एक्स प्लस ln x बाय x इंटू 1 प्लस एक्स, एंड हेंस आई कैन ln x बाय 1 प्लस एक्स कॉमन, 1 प्लस 1 बाय x, and this itself is x plus 1 by x, x plus 1 gone, and we have very smoothly ln x by x. अब that's interesting thing, क्योंकि देखो psi dash x is a standard function, so if psi dash x is ln x by x, I can integrate to find psi x. तो यहाँ से psi of x is ln x by x is, if I take ln x as t, then dx by x is t dt, so it's t square by 2 ln x square by 2 and plus constant, don't forget constant. Now how to get constant? अब वो psi का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनिशियल इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन, लेकिन आई नो व्हाट इज f ऑफ 1, 1 to 1, तो ये तो स्वा हो गया। f ऑफ 1 आई कैन राइट बिकॉज x is getting 0, so psi of 1 is what? Psi of 1 is f of 1 plus f of 1, 2f of 1, and f of 1 is 0, so psi of 1 is 0, ठीक है। तो यहाँ से c का जो वैल्यू आया वो खुद 0 हो गया, तो जो मेरा फंक्शन आ गया psi x, इट इज ln of x whole square by 2. Now psi x itself is f of x plus f of 1 by x, so I got the answer for our problem. So if I'll put x equals e, I'll get 1 by 2, तो इसका आंसर 1 by 2। If you'll put 2024, तो you'll get ln of
2024 x square by 2. This will not be estimation. Of course 2024 they will not ask you. क्यों? क्योंकि ई का ही कुछ पावर देगा जिससे आंसर को छा जाए इंटीग्रेटर का और फ्रैक्शनल टाइप का. ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड. अब सेकेंड मेथड में कोई बच्चा मे बी डायरेक्टली हिल कैलकुलेट एफ ऑफ 1/x, तो वो भी पॉसिबल है. तो एफ ऑफ 1/x इज व्हाट, इंस्टेड ऑफ x you put 1/x ln t by 1 plus t dt. Now you know somewhere you have to connect this to 1 to x ln t by 1 plus t dt. So that motivates us to bridge the gap. अब क्या बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर मैं एक सब्सटीट्यूशन करूँ, क्योंकि देखो 1 को 1 बनाना है, 1/x को x बनाना है, तो 1 को 1/1 बनाना है और 1/x को 1/1/x बनाना है. So that motivates us to make a substitution t equal to 1/u. I hope it is clear. तो जैसे ही ये सब्सटीट्यूशन लोगे तो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स 1 to x माइनस लॉन यू बाई 1 प्लस 1/u. आप चेक कर सकते हो, देन माइनस 1/u स्क्वायर डी एंड दैट्स 1 to x लॉन u बाई 1 प्लस u टाइम्स u डी. अब फिर वही आ गया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x अगर इवेलुएट इफ विल डू, सो 1 to x लॉन u बाई 1 प्लस u डी. Don't tell sir it was t and you are using u. It doesn't matter, it's a dummy variable. Finally whether you take x dx integral 0 to 1, it's same as golu d golu integral 0 to 1, right? It doesn't matter. How does it matter? if finally तो वेरिएबल को आप 1 और 0 ही पुट कर रहे हो ना, तो वेरिएबल को कोई भी नाम दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. ये 1 to x ln u by 1 plus u by 1/u d. ओके अब फिर ये तो सेम ही हो गया, तो ये तुम्हारा फिर से आ गया 1 to x ln u by u du विच इज हाफ ln x स्क्वायर. सो देखो लाइक आप क्वेश्चंस को कैसे, ठीक है ना, फील करके डाल दी. सो इन बोथ वे दिस क्वेश्चन कैन बी. तो ऐसे देयर इज मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड दिस टाइम सपोज f डबल डैश x इज कंटिन्यूअस. f double dash is continuous on the interval 0 to pi such that 0 to pi f of x plus f double dash x times sin x dx is 2, and if it is given f of pi is 3, you have to find f of 0. अब ये परफेक्ट जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन इज सिंपल, लेकिन अब आपको क्लियरली दिख रहा है वी हैव एफ ऑफ एक्स एंड साइन एक्स, दो अलग अलग स्पीसीज है, चाइनीज इंडियन. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ एंड यू विल. ठीक है, तो इफ आई यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑन एफ ऑफ एक्स. अब ये आइडिया क्यों आया, एक तो तुम सेपरेट करके अब डबल डैश एक्स पे लगा के फिर उसको छोटा कर दो. तो अभी मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, ओके, एफ और एफ डैश में. तो मैंने एफ एक्स साइन एक्स पे लगाता हूँ, एफ एक्स इंटू साइन एक्स विल गेट राइट. सो एफ एक्स कुछ हो रहा और साइन एक्स को इंटीग्रेट किया, सो माइनस एफ एक्स कॉस एक्स वैल्यूड फ्रॉम 0 to पाई प्लस 0 to पाई एफ डैश कॉस एक्स डी एक्स. सो दिस वी आर गेटिंग एफ ऑफ पाई प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 0 to पाई एफ डैश कॉस एक्स डी एक्स. अब चलो अब इसका टाइम आएगा, ठीक है. तो दूसरे वाले को इफ आई पिकअप 0 to पाई एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स. So this will give sin x को छोड़ो और f डबल डैश को डिफ्रेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो. वाई, क्योंकि ऑलरेडी आई गॉट इन टर्म्स ऑफ f डैश, सो दैट्स वाई आई वांट टू कनेक्ट f डबल डैश विद f डैश. तो ये बेसिक मोटिवेशन. 0 to पाई माइनस 0 to पाई f डैश cos x dx. तब ये क्वांटिटी आपको दिख रहा है, ये कितना जाएगा, ये तो 0 ही हो गया ना, क्योंकि साइन पाई पे भी गया 0, साइन 0 पे भी गया. सो वी हैव 0 to पाई एफ डैश कॉस एक्स डी. वही होना था. जैसे ही हम ऐड कर देंगे इस दोनों को, तो ये वाला पोर्शन विल गेट कैंसिल विद दिस, विल गेट एफ ऑफ पाई प्लस एफ ऑफ 0. ठीक है, तो एफ ऑफ पाई प्लस एफ ऑफ 0 इज व्हाट 2. सो एफ ऑफ पाई प्लस एफ ऑफ 0 is 2. एफ ऑफ पाई इज गिवन 3, so एफ ऑफ 0 will be -1. So this was simple problem. But the point is sometimes even the simple problem, okay, looks complicated when you see in the JEE paper. So whenever you see these kind of जैसे different species
और 0 to π/2 वहाँ पे 2 to the power x एंड साइन n/2 रिकर्सिव रिलेशन, किंग्स रूल लगाओ या पार्ट्स लगाओ, क्योंकि फंडामेंटली यही दोनों चीज़ आपके सिलेबस में है, ठीक है। कभी कभी दे कैन गिव यू लिमिट इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80 इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x², where x is going from 0 to t. Let's say BT is the area bounded by triangle with vertices 0 0 t sin t² and let's say t 0, ठीक है। AT is area under curve and BT is area of triangle. You have to find limit t tends to 0 plus AT by BT. तो AT क्या अपने पास, साइन x² कर्व रफ हुआ ऐसा दिखेगा, लेट्स ए वेरी स्मॉल पोर्शन आई एम टेकिंग, so 0 to t, so this represents AT। अब 0 to t में ये जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, BT। सो टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। अब क्लियरली तुम देख सकते हो रेशियो 1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, क्योंकि एट एनी पॉइंट जैसे मान लो इफ आई ट्रंकेट हियर सो स्टिल दिस एरिया इज लेस देन दिस, तो एक तो फील से आ रहा है 1 से छोटा होगा, लेकिन नाउ द पॉइंट इज इफ इट इज वेरी क्लोज टू 0 बोथ एरिया इज टेंडिंग 0, सो इज टेंडिंग 0 बाई टेंडिंग 0, सो वी कान कमेंट अबाउट द एक्चुअल वैल्यू। हाँ इतना बोल सकते हैं विद द फील लाइक इट विल बी लेस देन 1, ठीक है, इतना तो फील से बोल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप कमेंट नहीं कर सकते हो, तो बहुत डिफरेंस नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, एरिया ऑलरेडी आई नो व्हाट इज AT, सो AT इज 0 to t sin x² dx and BT is half into base into height, half into t into sin t²। अब इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड एरिया सेपरेटली तब तो आप गए काम से, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे रीजन क्या है, इस 0 by 0, सो नाउ यू यूज लॉपिटल्स रूल, यस a' by b' लिमिट t टेंड्स टू 0। अब जैसे a' b' तो वो बहुत आसान है, a' इज व्हाट साइन ऑफ t² एंड b' बाई चेन रूल साइन ऑफ t² प्लस t² कॉस t², ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो आई कैन डिवाइड बाई t² बाई t², दिस विल बी 1, दिस इज 1 और ये cos 0 1 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर है 1/1 प्लस हाफ which is 2/3। So the point is like yes, sometimes geometry problem can also be clubbed and you can feel like they can create some nicer problem out of that, right? चलो एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं लिमिट से, एंड दिस क्वेश्चन इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेट मी यूज कैपिटल N, कैपिटल N टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा 1/n, n is going from capital N to 1 divided by log n। अब इस टाइप का क्वेश्चन ना JEE मेंस है asked one times and that's so interesting, डेफिनेटली एडवांस भी ये पूछ सकता है। अब सबसे पहले तो ऊपर वाला सीरीज ही खुद डिकोड करोगे तो ये हार्मोनिक सीरीज है, बिकॉज इट्स 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 टिल लेट्स से 1/n एंड डिवाइडेड बाय log n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, ठीक है। अब यू नो ऊपर वाला हार्मोनिक सीक्वेंस है, हार्मोनिक सीक्वेंस का सम टिल इन्फिनिटी विल गो टू इन्फिनिटी, सो इट्स इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। प्रॉब्लम में जब डायरेक्टली आप इसको डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो फिर लिमिट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे वन वेरी स्मार्ट टेक्निक इज देयर एंड द स्मार्टनेस इज, अब देखो इसको यू कैन ज्योमेट्रिकली फील लाइक व्हाट डज दोज टर्म्स रिप्रेजेंट्स, राइट। So we can geometrically feel about a term. For example, imagine if you have this graph of 1/x, because feeling was 1/1, 1/2, 1/3, 1/n, तो 1/x का ग्राफ रफली कुछ ऐसा दिखेगा, क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे ऐसे करते करते इमेजिन n पे, और ये n-1, तो 1 पे you will get this height, right? 2 पे will get this side, 3 पे will get this side. So what is the significance of 1/1? 1/1 represents this area, ये ना। 2 पे we are getting ये area, 3 पे we are getting this area,
4 पे this area, n पे this area. See why this area? Because this distance is 1 and this height is 1. So area of first chunk is 1. What is area of second chunk? Distance is 1 and this height is 1 by 2 because graph is y equal to 1x function. तो ये जो second sided division है that's area is half. थर्ड साइडेड डिवीजन एरिया इज 1/3. तब यहाँ से फील आ रहा है. ठीक है, क्या फील आ रहा है यहाँ से? द फील दैट वी आर गेटिंग इज दैट 1 से इफ आई कीप ऑन एडिंग लाइक 0 टू ये वाला जो एरिया है. ठीक है, और आई कैन टेल एरिया फ्रॉम 1 to n. सो इफ आई टेक इंटीग्रल फ्रॉम 1 to n dx/x. ठीक है, 1 to n dx/dx, ये वाला जो एरिया आएगा दैट इज नथिंग बट सो द एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस कर्व. ठीक है, सो दैट विल डेफिनेटली बी मोर देन ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 से लेके 1/, ये तो पक्का गारंटीड है. ठीक है, सिमिलरली इफ आई टेक अपर चंक, if I'll take upper chunk, what's going to happen? ठीक है, so 1 पे maybe I'll get now this time 1 पे I'll get this area, 2 पे I'll get this area, 3 पे I'll get 1/3. okay, and n पे I'll get this till n plus 1. So if I take this upper one, then if I were to integrate, like from 1 to n, so I can take now 1 to n dx/x. This time will be beaten by half plus 1/3, ऐसे करते करते 1/n plus 1. तो यहाँ से एक चीज़ तो मुझे पता चल गया. क्या पता चला? जो dx/x का जो इंटीग्रल है 1 to n के बीच में, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? दैट इज डेफिनेटली लेसर देन, अच्छा यहाँ पे इट्स उल्टा बिकॉज दिस एरिया विल बी लेसर देन दिस. दैट्स डेफिनेटली लेसर देन 1/2 प्लस 1/3 से लेके 1/n प्लस 1 एंड दैट इज ग्रेटर देन 1/2 प्लस 1/3 से 1. अब यहाँ से कैन यू गिव मी द थॉट ऑफ हाउ एग्जैक्टली विल बी डूइंग दिस? नाउ क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट डन. देखो कैसे, क्योंकि यहाँ से जो आपका गया ये ग्रेटर देन 1/2 प्लस 1/3 ऐसे करते करते 1/n तक. एंड द ओनली थिंग इज आई हैव नॉट एडेड 1. वही एक प्रॉब्लम है. ठीक है, सिर्फ अपार्ट फ्रॉम 1 वी आर एबल टू कैप्चर द फीलिंग ऑफ ऑल अदर एक्सप्रेशन. सो विल सी हाउ टू मैनेज. बट अब ये क्वांटिटी इज ऑलरेडी log n माइनस log 0. सो ln n सैंडविच इज दिस, राइट? ln n वहाँ से वहाँ आ जा रहा है. बेसिकली log n मीन्स बेस ई पे ये पूछ रहे थे ln n. ओके, नथिंग इज मेंशन मीन्स नेचुरल लॉगरिथम. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? अब तुम देखो, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि n वेरी लार्ज क्वांटिटी है. इफ n इज 0 to 1 तब log नेगेटिव होगा. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 1. तो इफ आई टेक इनवर्स ऑफ 1/ln n, तो ये इनइक्वालिटी चेंज कर देगा. ठीक है, 1/2 till 1/n and 1/2 till 1/n plus 1. Now let's multiply with 1 plus that harmonic sequence. Okay, which is hn. अब बताओ ये hn by limit, if I want to calculate this, limit n tends to infinity, that will be same as limit n tends to infinity here and limit n tends to infinity over here. अब h of n यहाँ पे है क्या? h of n यहाँ पे है 1 plus 1/2 से लेके 1/n तक, और यहाँ पे भी है 1 plus 1/2 से लेके 1/n तक. ठीक है, अब ये क्वांटिटी तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो आपका आ गया इसको मैं 1/2 से 1 plus n तक और प्लस हाफ से 1/n बाई हाफ से 1/n तक ले सकता हूँ. वाई कैन राइट दिस इन दिस वे? बिकॉज बोथ लिमिट इज फाइनाइट एंड लिमिट ऑफ सम ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ सम. n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जो हो जाएगा वो इन्फिनाइट डाइवर्ज कर जाएगा. ठीक है, 1/2 से भी 1/n तक का सम, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगा. इट मीन्स आई नो दिस लिमिट विल बी 1.
चलो अब सेकेंड लिमिट का बात करते हैं। तो 1/2 से 1/n तक ऑलरेडी है एक्सप्रेशन, ठीक है, बट वी हैव 1 से 1/8, सो हाउ अगेन वी कैन ब्रेक। So what you can do is basically you can add 1/n plus 1 and subtract 1/n plus 1, ठीक है। Now 1/2 to 1/n plus 1, ये को पूरे को एक मान लो, so 1/2 to 1/n plus 1 and then 1 minus 1/n plus 1 को you take a separate identity divided by again half to 1/n plus 1 divided by half to till 1/n plus 1। अब दिस लिमिट भी वो 1 हो जाएगा प्लस, अब ये लिमिट देख लो, दिस n plus 1 minus n, so that will become n by नीचे में n plus 1, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सो नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n by n plus 1 टाइम्स हाफ टिल 1/n plus 1। अब ये सिंपल है बिकॉज आई कैन डिवाइड बाय n, तो ये 1/1 plus 1/n हो जाएगा, और ये ना दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी ऑलरेडी एंड दिस इज गोइंग टू 1 फाइनाइट, सो ओवरऑल इट विल गो टू 1/infinity 0। तो ये भी खत्म हो गया। फाइनली जो मेरा इसका आंसर आ गया वो वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। इसको आप और सिंपल वे में कर सकते हो कि यहाँ पे आई हैव टेकन अ वेरी नेचुरल पाथ। नाउ सम ऑफ यू माइट आस्क मी व्हाई नॉट यू हैव टेकन फ्रॉम 0 to n, तब तो डायरेक्ट हो जाता। अब देखो 0 to अगर तुम n लोगे और dx/x लोगे तो ये खुद डाइवर्ज कर जाएगा, बिकॉज log n minus ln 0, now ln 0 is already minus infinity tending to minus infinity, so it's ln n plus infinity, so it's diverging series। तो आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। दैट्स द रीजन, skip that please। so I hope काफ़ी टेक्निक्स जो है मीन्स हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दिस, उसको आप समझ पा रहे हो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एंड इट्स 0 to 1 रूट ओवर 1 minus x to the power 6 and eighth root of that minus sixth root of 1 minus x का power 8 this dx। अब ऑफ कोर्स इसका आंसर 0 आने वाला है। एक तो तुम ज्योमेट्रिकली सोच सकते हो, क्योंकि इफ दिस इज अ फंक्शन f then this is nothing but its inverse function। Now how I am so sure about this, because 1 minus x to the power 6 to the power 1/8 in 0 to 1 is strictly decreasing, right? So of course in 0 to 1 the function is invertible। Once you calculate it inverse, तो आप क्लियरली देखोगे 6 रूट ऑफ 1 minus x का पावर 8 जा रहा है इसका इन्वर्स। अब फंक्शन और इन्वर्स का क्या प्रॉपर्टी है, फंक्शन और उसका इन्वर्स जो होगा वो आपस में रिफ्लेक्शन होंगे अबाउट लाइन y इक्वल टू x। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि फंक्शन इज ईटिंग अप अ वैल्यू i एंड गिविंग यू एन आउटपुट o। सपोज कोई भी फंक्शन है, सो इट टेक्स एन इनपुट लेट्स से i एंड दिस फंक्शन इज रिटर्निंग यू आउटपुट o। तो फंक्शन क्या कर रहा है, i, o पेयर जनरेट कर रहा है, एंड व्हाट f इनवर्स x इज डूइंग, ये इट्स बेसिकली अनडूइंग नथिंग, इसीलिए इट्स इनवर्स। तो ये o इट करेगा एंड इट विल गिव i। f इनवर्स क्या कर रहा है, o खा रहा है, i दे रहा है। अब तुम देखो लाइक ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफ आई हैव पॉइंट i, o means let's say you have a duster like this represents length is I, height is o, so I, where is o, I? अब duster को vertically बैठा दो, so this is o, I, so common sense कल। तो clearly you can see ये along the line y equal to x में it is reflection of it means if I have some curve here f of x, तो उसका reflection इधर आ जाएगा, if this is f, this is f inverse x। तो इस थियोरी से तो ये क्वेश्चन ऐसे ही गया, बिकॉज एट x इक्वल टू 0 आई कैन प्लॉट 1, एट x इक्वल टू 1 इज 0, तो कुछ इस टाइप का फंक्शन आएगा, ठीक है। इनफैक्ट फंक्शन कुछ ऐसे ही ऐसा आएगा, वो आप चेक कर लेना। मतलब इट विल बी समथिंग लाइक दिस, बिकॉज देयर विल बी अ पॉइंट वेयर इट चेंजेस इस नेचर कनकेविटी। तो सपोज फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन अगेन एट x इक्वल टू 0 इट विल बी 1 एंड 1 पे 0, तो ये भी कुछ इस टाइप का आ रहा होगा। सो वट एवर एरिया वी हैव फॉर f ऑफ x, सेम एरिया वी हैव फॉर f इनवर्स x। आप क्लियर देख सकते हो कि वट एवर वी आर सेक्रीफाइसिंग एयर, देखो वट एवर वी आर सेक्रीफाइसिंग एयर, ओके, वी आर गेनिंग देयर। तो ओवरऑल तो डिफरेंस ऑफ एरिया है, वन कर्व अगेन आई एम टेलिंग, वन कर्व इज दिस रेड वन f ऑफ x, तो दूसरा कर्व ऐसा हो गया, इसका रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू x में, नेट एरिया जो होगा वो आ जाएगा लड्डू 0।
इसको यू कोड डू इन अदर वे ऑल्सो, जैसे तुम 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर लो फर्स्ट फंक्शन को, दूसरा हो गया 0 to 1 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। अब वी वांट माइनस ऑफ दैट, तो आई ऑलरेडी नो द फंक्शन नेचर, सिंस एफ ऑफ एक्स इज 1 minus x to the power 6 to the power 1 by 8 is f of x. The function eats 0 and gives 1. So inverse function will eat 1 and give 0. Right? So inverse function will eat 1 and give 0. And the function eats 1 and give 0. So inverse function will eat 1 and eat 0 and give 1. तो ऐसा inverse का nature होगा. तो f inverse x को if I take let's say some t, then this becomes x is f of t. So when x is 0, 0 is f of t. So what is the value? 1. So it will become 1 to 0 t and f dash t dt. अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 to 0 t f of t dt. We can do by integration by parts, right? Like t को छोड़ो, f dash t को इंटीग्रेट करो from 1 to 0, माइनस t को डिफरेंशिएट करो, f dash x को छोड़ो, so f t dt, right, from 1 to 0. And this is minus time, so this will become minus, this will become plus. Clear? And now you can clearly see 0 to 1 ft dt and 1 to 0 ft dt will be 0. Okay, this is 0 to 1 minus f of dt. तो फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 0 टाइम्स एफ ऑफ 0 एंड प्लस 1 टाइम्स एफ ऑफ 1. अब एफ ऑफ 1 खुद 0 है तो ओवरऑल आंसर 0 आ गया. मतलब आप इसको अलजेब्राइकली भी कर सकते थे, ठीक है. यूजुअली आई रिकमेंड आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अलजेब्राइकली ही करो, बिकॉज इट्स नॉट ओनली वैलिड फॉर एफ एंड एफ इनवर्स, इवन दे लाक्स एक्स स्क्वायर एफ इनवर्स, तो अलजेब्राइकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आप आसानी से हैंडल कर सकते हो. फील करने के लिए आई हैव गिवन यू एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. अब ये 6 और 8 है, दे कुड आस्क यू 2024 एंड 2026 ऑल्सो, तो आंसर उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. ये सिमेट्रिक होगा. हाँ, अब किन्हीं को लग रहा है सर ये ग्राफ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा बस ऐसे ही, तो फिर ये नहीं होगा. देखो अगर ऐसा ग्राफ होगा तो फिर दोनों एरिया सेम कैसे होगा, ठीक है. तो फिर आंसर 0 तो गलत होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से. इनफैक्ट ग्राफ यहाँ पे टर्न कर रहा है, ठीक है ना. द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज आप ये चेक कर लो, उसको डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक कर लो जहाँ कन्केविटी चेंज कर रहा है. आई होप दिस लेक्चर वॉज वेरी फ्रूटफुल एंड आपका काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया है. It's a great way to boost your revision program. Thank you. Have a good day. Please do like and subscribe the channel and try to connect your juniors and ask them to comment also, क्योंकि I am coming with the full course after your JEE Advanced examination, जिसमें हम थियरी भी पढ़ाएंगे आपको, पूरा परफेक्ट थियरी होगा, ठीक है ना. फालतू का मतलब 100 लेक्चर्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव JEE Advanced के लिए इन एवरी चैप्टर 10 to 15 क्वालिटी लेक्चर्स इज सफिशिएंट टू टैकल द प्रॉब्लम्स